Today, the entire world is running on the energy, and the most usable form of energy is electricity. Today, the economic growth of a country is determined by the way they are using the amount of energy used by that country. So, the today's world biggest requirement is the energy, and the most usable form of energy is electricity. Hello, I'm Santosh Kumar Sarma, your maths and physics teacher. In this session, we are going to discuss about electricity. In electricity, we study about the behavior of charges, how charges behave when they are at rest as well as in motion. Especially in standard 10th, we will discuss about the behavior of charges in motion, that is current electricity. 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है. ठीक है बच्चों, हम समझेंगे करंट कंस्टिट्यूट कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी है क्या, उससे रिलेटेड टर्म्स क्या क्या हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या हैं, उन्हें हम देखेंगे और समझेंगे. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कंस्टिट्यूट कैसे होता है, हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज कंस्टिट्यूटेड. नाउ when we talk about the electricity, especially electric current, so electric current is the most usable form of energy. Today we are converting all types of energy, whether it is chemical energy, tidal energy, wind energy, nuclear energy, in electricity. It means we are converting all sort of energy, all forms of energy into the most usable form of energy, that is electric current. Why? Because our electrical appliance, or you can say machines runs on this form of energy conveniently. So our purpose is to convert all types of energy, whether it is chemical, biochemical energy, or whether it is nuclear energy, solar energy. We are converting all forms of energy into the most usable form, because all our electrical appliances, electronics run on this electric current. That is the most usable form of energy. So electric current is the most usable form of energy. Now, the first question arises in our mind. In this chapter, especially we will study about the flow of charges in solid state. Means metals. In this chapter, we will discuss about the flow of charges in solid conductor, that is metallic conductor. Now, the question arises, what constitutes electric current? We will try to answer this question. Question is, what constitutes इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट बनता कैसे है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट किस चीज से बनता है, उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे. सो कहता है एज द फ्लो ऑफ वाटर constitute water current and flow of wind.
constitutes wind current. Similarly, flow of charges constitute electric current. So, it is the flow of charge that constitutes electric current, isn't it? So, whenever charges flow, regardless of whether it is positive or negative charge, whenever charge flow, right, it constitutes a current in the circuit that is called electric current. जब भी चार्ज फ्लो करेंगे बच्चों, हमेशा ये इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट करेगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहां देखा, एज द फ्लो ऑफ वाटर कंस्टिट्यूट्स वाटर करंट, जैसे फ्लो ऑफ वाटर वाटर करंट कंस्टिट्यूट करता है, फ्लो ऑफ विंड कंस्टिट्यूट्स करता है विंड करंट, सिमिलरली इन द सेम मैनर द फ्लो ऑफ चार्जेस कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट. Now, there must be some medium, there must be some conductor that we are calling it as a medium through which the current will pass, through which the electric charges will pass. Those materials through which the electric charges can pass freely are called conductor. ये आप पहले से भी जानते हैं. So electric current is constituted by the flow of current. Now the question arises, how the charges flow? ये charges flow कैसे करते हैं? Our next question is how the charges flows. ये चार्जेस फ्लो कैसे करते हैं? पानी के फ्लो के बारे में आप सब लोग जानते हैं. You know about the flow of water. That water flows from high concentration to lower concentration. ठीक है बच्चों, आप जानते हैं कि पानी हमेशा हायर कंसंट्रेशन और यू कैन से हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ चलती है. सिमिलरली द करंट और यू कैन से द चार्जेस फ्लो फ्रॉम हायर density of charge to the lower density of charge, or you can say charge pressure. So the charges flow from higher charge pressure to lower charge pressure हमेशा, ठीक है. जैसे पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है, सिमिलरली charges always flow from higher concentration to lower concentration. We express the concentration of charges as electric pressure. तो जहां पे इलेक्ट्रिक प्रेशर ज्यादा है, एक जगह पे इलेक्ट्रिक प्रेशर कम है, तो हायर इलेक्ट्रिक प्रेशर से लोअर इलेक्ट्रिक प्रेशर की तरफ चार्ज फ्लो करते हैं ना. अगेन अ क्वेश्चंस हिट इनटू आवर माइंड दैट व्हाट वी नीड टू डू टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज का कंटिन्यूअस फ्लो बना रहे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज what we need to do to maintain the flow of charges. We will illustrate this by an example. एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे. चार्जेस कंटिन्यूअसली हम कैसे फ्लो करा सकते हैं या कैसे फ्लो करते हैं. सपोज कीजिए there are two containers filled with water. एकदम सिंपल है. मान लेते हैं दो कंटेनर है और दोनों में ही पानी भरा है. They're filled with water. In container A, label this container as A and B. In container A, the concentration of water is high, or you can say the level of water is high. ठीक है बच्चों, इन पहले वाले कंटेनर में वाटर का कंसंट्रेशन हाई है, दूसरे वाले में वाटर का कंसंट्रेशन लो है. जस्ट लाइक दैट. नाउ वी कनेक्ट दिस कंटेनर A and B by means of a pipe.
एंड एज वी क्रिएट अ सक्शन पुल, आपने किया होगा बचपन में कई बार, तो जैसे ही सक्शन पुल क्रिएट करता वाटर फ्रॉम दिस कंटेनर ए स्टार्ट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द कंटेनर बी, वाटर यहां से ग्रेजुअली फ्लो करना स्टार्ट करेगा और ए से बी की ओर जाएगा। ये हम जानते हैं, द वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एक समय ऐसा आएगा, टाइम विल रीच, राइट, when the concentration of water in both the container will be equalized, दोनों ही कंटेनर में जो पानी का जो लेवल है वो बैलेंस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अंडर दैट कंडीशन फ्लो विल स्टॉप, रुक जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कंटिन्यूअसली कंटेनर ए से कंटेनर बी में पानी का लगातार फ्लो बना हुआ है, यानी ए से बी में लगातार जाए। टू मेंटेन दिस फ्लो we need to maintain, right, a concentration difference between the two container A and B to get a continuous flow of water from A to B. We need to maintain a concentration difference of water in container A and B. अगर हमें कंटिन्यूअस फ्लो वाटर का चाहिए, कहां से, ए से बी में, यानी कंटेनर ए से कंटेनर बी में कंटिन्यूअसली अगर हमें फ्लो ऑफ वाटर मेंटेन करना है, तो इसके लिए हमें एक कंसंट्रेशन डिफरेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा ए और बी के बीच में। ठीक है बच्चों, जब तक ये कंसंट्रेशन डिफरेंस मेंटेन रहेगा, कंटेनर ए से कंटेनर बी में चार्जेस फ्लो करते रहेंगे, वाटर फ्लो करता रहेगा। सिमिलरली इन द सेम मैनर, to get a continuous flow of charges, we need to keep one end of the circuit at high electric pressure and other at low electric pressure. इसी प्रकार से हमें यदि कंटिन्यूअस फ्लो चाहिए, अब ये मेंटेन करने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। यहां से पानी यहां जा रहा है कंटेनर ए से कंटेनर बी में, इसमें से निकाल के हम लगातार इसमें डालते चले जा रहे हैं। इन दिस वे वी कैन मेंटेन अ कंसंट्रेशन डिफरेंस between the water levels of container A and container B. Similarly, to get a continuous flow of electric charge, इलेक्ट्रिक चार्ज का बच्चों लगातार यदि हमें फ्लो बरकरार रखना है, then we need to keep one end of the circuit at high electric pressure. It means वहां पर density of charges ज्यादा होंगे, and the other at low electric pressure, दूसरे जगह पर density of charges कम होंगे. Then the charges will flow from higher electric pressure to the lower electric pressure. तो ठीक इसी तरह से चार्जेस हमेशा फ्लो करेंगे हायर इलेक्ट्रिक प्रेशर से, जहां इलेक्ट्रॉन्स की, जहां चार्जेस की अधिकता ज्यादा है, जहां ज्यादा चार्जेस हैं वहां से जहां कम चार्ज है उस तरफ लगातार फ्लो बना हुआ रहेगा, तब तक जब तक कि हम कंसंट्रेशन डिफरेंस मेंटेन करेंगे। जैसे ही दोनों एंड का कंसंट्रेशन डिफरेंस बैलेंस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, द फ्लो ऑफ चार्ज विल स्टॉप। सिर्फ एज in the case of water, the flow of water will stop if the level of water in container A
becomes equal to the level of water in container B. जैसे ही दोनों में बराबर होगा concentration, the flow of water will stop. Similarly, as the concentration of charges, or you can say electric pressure, get equalized at two ends of a circuit, then the flow of charges will stop. तो फ्लो ऑफ चार्जेस बच्चों रुक जाएगा। तो यहां स्पष्ट है बच्चों कि यदि हमें कंटिन्यूअस फ्लो चार्जेस का चाहिए तो हमें एक एंड को हाई कंसंट्रेशन पे, दूसरे एंड को लो कंसंट्रेशन पे रखना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने क्वेश्चन रेस किया था कि चार्जेस फ्लो कैसे करते हैं, तो चार्जेस फ्लो करते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्जेस एट टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में यदि कंसंट्रेशन डिफरेंस चार्जेस का टर्म में डेवलप हो रहा है तो एक जहां हाई कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज है पॉइंट, वहां से जहां लो कंसंट्रेशन पॉइंट है उस तरफ चार्ज फ्लो करने लगेंगे। राइट, अभी हम लोग बात करेंगे बच्चों डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे होता है। अब ये तो हमने पता कर लिया कि भाई कैसे फ्लो करेगा, किस चीज से बनता है, तो अब जरा देखें कि डायरेक्शन क्या होगा। यहाँ कंसंट्रेशन हाई, यहाँ कंसंट्रेशन लो है, डायरेक्शन ए से बी की तरफ है पानी का, तो करंट चार्जेस के टर्म में क्या होगा, चार्जेस किधर से किधर जाएंगे। राइट, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। अभी हमने देखा कि फ्लो ऑफ चार्जेस कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट बनता किससे है, तो फ्लो ऑफ चार्जेस से। अब ये फ्लो ऑफ चार्जेस का कुछ तो डायरेक्शन होगा, किस तरफ जाएगा, तो डायरेक्शन को हम दो प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं, कन्वेंशनली एंड इलेक्ट्रॉनिकली। अभी हम लोग बात कर रहे हैं करंट का डायरेक्शन है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस का फ्लो किधर से किधर होगा, चार्जेस कैसे फ्लो करेंगे, तो यहां इसके अनुसार से हम सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात करेंगे, और वो इस बारे में बात करेंगे कि हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही चार्जेस फ्लो करेंगे। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस is always from high electric pressure to low electric pressure। हमेशा ये हाई इलेक्ट्रिक प्रेशर से लो इलेक्ट्रिक प्रेशर की तरफ जाएगा, यानी जहां डेंसिटी ऑफ चार्जेस ज्यादा हैं वहां से जहां डेंसिटी ऑफ चार्जेस कम है, चार्जेस हमेशा उस डायरेक्शन में ही फ्लो करेंगे। सपोज करते हैं ये दो चार्ज बॉडी है, यहां पे हाई डेंसिटी है चार्ज का, और यहां पे लो डेंसिटी है चार्ज का। जैसे इसको हम कनेक्ट करेंगे, द चार्जेस स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हाई डेंसिटी ऑफ चार्ज टू अ प्लेस वेयर द डेंसिटी ऑफ चार्ज इज लो। यहां से स्टार्ट करेगा चार्ज फ्लो करना लो की तरफ। राइट, तो द डायरेक्शन ऑफ चार्जेस इज ऑलवेज इन दिस वे। चार्जेस का डायरेक्शन हमेशा इसी प्रकार से रहेगा। जब हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, तो इसको हम दो प्रकार से दर्शाते हैं बच्चों। एक दर्शाते हैं कन्वेंशनली, आपको याद होगा 8th क्लास में आपने पढ़ा है बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक्सपेरिमेंट। राइट, ही फ्लाई अ काइट इन द रेनी सीजन up to the cloud and tied the kite with the silk thread. At the end of the silk thread, right there, he tied a metallic key.
एक सिल्क का थ्रेड लिया, पतंग को बादलों के पार उड़ाया, बादलों के नजदीक तक पहुंचाया, और वो जो पतंग था वो बंधा हुआ था सिल्क के थ्रेड से, और सिल्क थ्रेड के लास्ट में एक मेटालिक की उसने लगाया। उसको भी जरा रिकैप कर लेते हैं। ये पतंग है, ये सिल्क थ्रेड है, बादलों तक उड़ाया, और जब लाइटनिंग हुआ, राइट, तो हम जानते हैं क्या सिल्क थ्रेड कैन इजिली बी चार्ज, सिल्क थ्रेड इजिली चार्ज हो सकता है, और यहां पे मेटालिक की लगाया हुआ था, राइट। बेंजामिन फ्रैंकलिन ऑब्जर्व दैट दिस मेटालिक की बिकम चार्ज, हीट अप हो जाता है, ठीक है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कंक्लूड क्या किया कि कुछ तो है जो फ्लो कर रहा है सिल्क थ्रेड से होता हुआ, जिसकी वजह से मेटालिक की थोड़ा गर्म हो जा रहा है। तो उसने कहा कि भाई कुछ फ्लो कर रहा है, मतलब चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। अब जिस समय यह फेनोमेना ऑब्जर्व हुआ, राइट, द बेंजामिन फ्रैंकलिन, द टाइम व्हेन बेंजामिन फ्रैंकलिन ऑब्जर्व दिस फेनोमेना, राइट, इलेक्ट्रॉन्स वेर नॉट नोन एट दैट टाइम, इलेक्ट्रॉन्स उस समय एग्जिस्टेंस में थे लेकिन जानकारी नहीं थी। तो उसने क्या माना कि ये जो फ्लो है, ठीक है, इट्स अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो उसने कंसीडर किया कि ये पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है, राइट। सिंस देन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज रिगार्डेड, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कन्वेंशनली टेकन फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। तो उस समय से हम कन्वेंशनली थोड़ा कह सकते हैं कि प्रतीकात्मक रूप से हम प्लस से माइनस की ओर दर्शाते हैं। ये एनसीईआरटी बुक में स्पष्ट लिखा हुआ है, द टाइम व्हेन द phenomena of electricity was first observed, right, protons were the only known subatomic particles, hence the flow of charge, the electricity is regarded as the flow of positive charges। तो उस समय से ही इसको माना जाता है, आज भी हम दर्शाते हैं प्लस से माइनस की तरफ, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अभी बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट का। आपने पहले भी पढ़ा इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ चीज को भूल जाते हैं हम। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कहता है क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ है, ब्रेक नहीं हो रहा है, लगातार चार्ज फ्लो कर रहा है, ऐसे पाथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जरा इलेक्ट्रिक सर्किट जान लेते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक सर्किट जानने के बाद हम लोग डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे इन द सर्किट। It is a closed and continuous path of इलेक्ट्रिक करंट। ये क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ है इलेक्ट्रिक करंट का। एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाएंगे। अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजेस ऑफ अ बल्ब, कंडक्टिंग वायर, एन एमीटर एंड अ स्विच with a cell as a source of electric current. It's a simple electric circuit. Sometimes questions is asked based on this electric circuit. What are the components? The question is, what are the components of an electric circuit? इलेक्ट्रिक सर्किट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रिक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स होते हैं components of a simple electric circuit are a bulb, conducting wire,
ammeter, a key, and a cell. So these are the components of simple electric circuit. सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट में एक बल्ब आता है, कंडक्टिंग वायर आता है जिससे हम कनेक्ट करेंगे, एक एमीटर आता है, स्विच आता है और एक सेल आता है which is used as a source of electric current. Now, what is the direction of electric current in a closed electric circuit? एक इलेक्ट्रिक सर्किट में डायरेक्शन क्या होता है? तो डायरेक्शन दो तरह से बच्चों, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं. कन्वेंशनल डायरेक्शन, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस एंड इलेक्ट्रॉनिक फ्लो ऑफ चार्जेस. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फ्लो ऑफ चार्जेस दो प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो अभी हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे. So the direction of flow of electric current in a circuit. एक सर्किट में डायरेक्शन क्या हो, तो दो प्रकार से हम बात करते हैं. पहला देखेंगे हम लोग डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ, इसको हम लोग कन्वेंशनल डायरेक्शन लेंगे. दो प्रकार से हम इसको डिनोट करते हैं बच्चों. एक होता है कन्वेंशनल डायरेक्शन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है, इट इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट electric current is taken opposite to the direction of flow of negative charge. That is against the direction of electrons. We know that the negatively charged particle, electrons are the negatively charged particles. So, the direction of flow of conventional electric current is taken opposite to the direction of flow of negative charges, that is against the flow of electrons. It means from positive to negative terminal. प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ कन्वेंशनल डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं. इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है. हमेशा हम लेते हैं अगेंस्ट द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, कन्वेंशनल. अनलेस द क्वेश्चन स्पेसिफाई, आपको हमेशा यही डायरेक्शन लेना है, प्लस से माइनस की तरफ. दूसरा होता है सेकंड इलेक्ट्रॉनिक. डायरेक्शन ऑफ flow of electric current. तो
इसे हम लोग निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, पता है हमें एक्चुअली में क्या फ्लो कर रहा है सॉलिड कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन्स, राइट, पॉजिटिव चार्जेस नहीं, क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है। सो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, राइट। सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इज टेकन from negative terminal to positive terminal. निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। जस्ट लाइक दैट। सो इलेक्ट्रॉनिक फ्लो कह सकते हैं कि जस्ट अपोजिट है कन्वेंशनल फ्लो का, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Conventionally, we denote the direction of flow of electric current from positive to negative terminal. As per NCERT, you will learn more about these things in higher classes. But as per NCERT, when question is asked why the direction of conventional current is taken from positive to negative terminal, although we know that the electrons flow from the negative terminal to positive terminal. Actually, में flow क्या कर रहा है electrons, लेकिन हम कन्वेंशनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लस से माइनस की ओर। क्यों? तो एनसीईआरटी में लिखता है कि व्हेन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड, इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन एट दैट टाइम, दैट्स व्हाई कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। और जब तक स्पेसिफाई न कर दे कि इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तब तक आपको प्लस से माइनस की तरफ ही डायरेक्शन लेना है। ठीक है, तो ये बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कि कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट में क्या अंतर है। ठीक है, चाहे निगेटिव चार्ज फ्लो करे चाहे पॉजिटिव चार्ज फ्लो करे, करंट तो कंस्टिट्यूट होगा सर्किट में। ठीक है, चार्ज जो भी फ्लो करेगा कंस्टिट्यूट होगा, बट कन्वेंशनली हम प्रतीकात्मक रूप से एक तरह से कह सकते हैं यहां पर कि दर्शाते हैं प्लस से माइनस की ओर अगेंस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। बट इलेक्ट्रॉनिकली वी नो दैट द करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स out of 3 subatomic particles only electrons are mobile, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही डायरेक्शन को आपको ध्यान में रखना है तब तक जब तक क्वेश्चन एकदम स्पेसिफाई ना कर दे इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन बताइए आप करंट का, तब तक आप प्लस से माइनस की ओर ही लेंगे। ठीक है, कन्वेंशनल। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि कई बार निगेटिव चार्ज के टर्म में डायरेक्शन दे देता है, सो वी टेक, ऐसा क्वेश्चन कह देता है कि negative charge is flowing from negative terminal, electrons are flowing from negative terminal to positive terminal, what is the direction of current? तो डायरेक्शन ऑफ करंट जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, यानी प्लस से माइनस के, कई बार कह देगा बाएं तरफ से लेफ्ट से राइट की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो करंट का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, चलिए यहां तक हमने देखा कि फ्लो कैसे होता है। ठीक है, क्या कंस्टिट्यूट करता है इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोग डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट है क्या, और इसको जब हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डेफिनेशन है उसी में इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी छुपा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो न्यूमेरिकली हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, वो सारा कुछ इसके डेफिनेशन में। ठीक है, अब करंट फ्लो तो कर रहा है, करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है। ठीक है, बट भाई किस दर से हो रहा है, कितना अमाउंट में हो रहा है। ठीक है, कितना ज्यादा हो रहा है, कितना कम चार्ज फ्लो हो रहा है, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन के रूप में। तो कहा जाता है कि कैसे फ्लो कर रहा है, तो ये डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट is defined as
rate of flow of charge. किस दर से चार्जेस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम डिफाइन करते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, द अमाउंट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज flowing in per unit time is called इलेक्ट्रिक करंट। पर सेकेंड कितना अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी अभी तक हमने देखा कि करंट कंस्टिट्यूट कैसे करता है, चार्ज फ्लो कैसे करता है, ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा, कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक हमने देखा। यहां पर हम देख रहे हैं कि भाई फ्लो करेगा तो कितना करेगा, किस दर से करेगा, उस रेट को हम लोग डिफाइन करते हैं एज इलेक्ट्रिक करंट। देयरफॉर न्यूमेरिकली इलेक्ट्रिक करंट, therefore electric current is equal to charge upon time. Symbolically, it is denoted as I, capital I equals to Q by T, जहां Q चार्ज है बच्चों और T टाइम है सेकंड में, और चार्ज है किसमें, कूलम में। तो चलिए यहां पर हम लोग जरा इसका एसआई यूनिट भी देख लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो दिख रहा है ये दो फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंडेंट है, Q और T के ऊपर, दैट्स व्हाई इट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो इसके हम एसआई यूनिट को डिराइव करते हैं सिंस I इक्वल्स टू Q अपॉन T। चार्ज का होता है कूलम और टाइम का होता है सेकंड, therefore it is coulomb per second. This coulomb per second is known as ampere, denoted by capital A. This unit coulomb per second is given the name ampere to honor, right, a great physicist called Ampere, Andre Marie Ampere. उनके नाम के उनको ऑनर करने के लिए इस कूलम पर सेकंड को नाम दे दिया गया एम्पेयर। एम्पेयर का मतलब है कूलम पर सेकंड, इसको कैपिटल ए में हम दर्शाते हैं। इसके कुछ छोटे यूनिट होते हैं बच्चों, उसको भी जरा देख लेते हैं हम लोग। आई होप कि करंट का डेफिनेशन आपको क्लियर है। ये दोनों स्टेटमेंट एक ही मतलब है, ठीक है, या तो हम रेट लिखें या फिर लिखें अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लोइंग इन पर यूनिट टाइम, बोथ आर सेम। नाउ यहां ऐसा यूनिट हमने देखा, अभी हम इसको जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू जानते हैं तो काफी कुछ और समझते हैं तो काफी कुछ डिफाइन करना आसान हो जाता है। जैसे अब यहां बोलेगा डिफाइन 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, तो 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो जरा पहले न्यूमेरिकली देख लेते हैं। हम जानते हैं 1 एम्पियर मतलब सिंस I इक्वल्स टू Q बाई T, हमारे पास रिलेशन है, इंप्लाइज 1 एम्पियर करंट कब होगा, जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो करेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ according to this relation will be equal to 1 ampere only when charge is 1 coulomb and time is 1 second, 1 upon 1 equals to 1। तो इसको जब डिफाइन करना, सिंपली डिफाइन करेंगे when a charge of 1 coulomb
flows for 1 second, then the current generated or current produced is called 1 ampere. So सिंपली इसके ऊपर डिफाइन कर देना है आपको, बाद में न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन भी लिख देना है, राइट. सो 1 द अमाउंट ऑफ करंट इलेक्ट्रिक करंट produced by 1 coulomb of charge for 1 second is called 1 ampere. जब 1 कूलम चार्ज के द्वारा 1 सेकंड के लिए जितना करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे 1 एम्पेयर. ठीक है बच्चों. सो 1 एम्पेयर इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड. क्लियर है. कुछ छोटे यूनिट्स है इसके, स्मॉलर यूनिट. कन्वर्जन में न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय काम आएगा. A smaller unit of electric current, 1 milliampere equals to 10 to the power minus 3 ampere. 1 मिली एम्पेयर होगा 10 टू द पावर, इसको हम लोग सिंबॉलिकली 1 मिली एम्पेयर इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पेयर कहेंगे. इसी तरह से 1 micro ampere equals to 10 to the power minus 6 ampere. Symbolically it is written as 1 micro ampere equals to 10 to the power minus 6 ampere. ये जो दो छोटे यूनिट्स हैं वो काम आएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कन्वर्जन. ठीक है. तो एक बार रिकैप कर लेते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. किस दर से चार्ज फ्लो कर रहा है. ठीक है. किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पर सेकंड टाइम में बाहर की ओर जा रहा है. ठीक है. निकल रहा है या फ्लो कर रहा है. ठीक है. रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन. तो यहाँ कितना पर सेकंड में चार्ज पास कर रहा है इसको हम इलेक्ट्रिक करंट करते हैं. न्यूमेरिकली इट इज डिफाइंड डिनोटेड एज I इक्वल्स टू Q बाई टी. आपका पहला रिलेशन है. ठीक है. फर्स्ट रिलेशन है यानी पहला फॉर्मूला इस चैप्टर से रिलेटेड. I इज इक्वल टू Q बाई टी. नाउ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होगा. तो I इक्वल्स टू Q अपॉन T है बच्चों. तो चार्ज का होता है कूलम और टाइम का होता है सेकंड. सो इट इज कूलम पर सेकंड. नाउ कूलम पर सेकंड इज गिवन अ स्पेसिफिक नेम टू ऑनर द साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पेयर. इसको हम एम्पियर कहते हैं. कूलम पर सेकंड इज एम्पियर. राइट. 1 एम्पियर करंट को हमने डिफाइन किया. राइट. So when 1 coulomb of charge flows for 1 second, the current generated or current produced because of the flow of 1 coulomb of charge for 1 second is called 1 ampere current. तो जो 1 कूलम चार्ज के द्वारा 1 सेकंड फ्लो करने पर जितना करंट प्रोड्यूस होगा उस करंट को हम 1 एम्पियर कहते हैं. सो 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम बाय 1 सेकंड. ठीक है. न्यूमेरिकली डिफाइन कर लेंगे. दो स्मॉलर यूनिट्स को ध्यान में रखना है बच्चों, मिली एम्पेयर एंड माइक्रो एम्पेयर. मिली एम्पेयर 1 milliampere is equal to 10 to the power minus 3 ampere and 1 microampere is equal to 10 to the power minus 6 ampere. ठीक है. तो यहां तक समझा हम लोग. ठीक है बच्चों. अब यहां इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ये क्या होता है सर. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. सो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है किसी अमाउंट को किसी एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में एक्सप्रेस करना. जैसे हम सारे इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2n के रूप में. इट मीन्स ऑल इवन नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2. 2 इज अ कांस्टेंट. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 के रूप में हम सारे इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. Similarly, charges can be expressed as the integral multiple of fundamental charge. अब बच्चों ये फंडामेंटल चार्ज क्या है.
तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है, यू माइट बी अवेयर अबाउट द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इट इज 1.6 into 10 to the power 19 कुल। तो जो भी अमाउंट ऑफ चार्ज है उसको हम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ठीक है, फंडामेंटल चार्ज के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है द चार्जेस can be expressed as the integral product of fundamental charge. The charges can be expressed as the product of fundamental charge, integral product of fundamental charge. इसको हम express कर सकते हैं. This is called quantization of charge, right? And what is fundamental charge? The charge present on an electron is called fundamental charge. एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है बच्चों, उसे हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। स्पष्ट है। E माइनस हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज कितना है? 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. This is called fundamental charge. Now, according to the quantization of charge, charges can be expressed as the integral product of fundamental charges. या इंटीग्रल मल्टीपल लिखे प्रोडक्ट की जगह, इंटीग्रल मल्टीपल of fundamental charge, right? So according to quantization of charge, charge that is Q can be expressed as Ne. N is the number of electrons, E is the charge on electron. तो हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं Q equals to N, where N is the number of electrons. जहां N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब बच्चों जरा इसको हम पहले रिलेशन के साथ ऐड करेंगे, तो यहां ध्यान में रखना है Q इज इक्वल टू Ne। तो इसी फॉर्मूला से हमारे पास बनेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N इज इक्वल टू Q अपॉन E। यदि हमें पता है कि कितना चार्ज है, तो उस चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा या वो कितने इलेक्ट्रॉन से कंस्टिट्यूट हो रहा है, बन रहा है, ये हम निकाल सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी एक छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो एक बार रिकैप कर लीजिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहले क्वांटाइजेशन का मतलब समझिए। क्वांटाइजेशन मींस एक्सप्रेसिंग एनी अमाउंट, एनी क्वांटिटी एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ फिक्स्ड क्वांटिटी। एक फिक्स कांस्टेंट क्वांटिटी उसके इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना क्वांटाइजेशन कहलाता है। जैसे सारे इवन नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2, राइट। 1 into 2 2, 2 into 2 4, 3 into 2 6, right? Just like that, charges can be expressed, charges भी एक्सप्रेस किया जा सकते हैं एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल फंडामेंटल चार्ज का, जहां पर फंडामेंटल चार्ज क्या है? कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज, राइट। द
चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है इसका फंडामेंटल चार्ज, इसे फंडामेंटल चार्ज कहते हैं बच्चों। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब according to quantization of charge q, that is charge can be expressed as Ne minus, it means number of electrons into charge on an electrons, where n is the number of electrons। जब हमको चार्ज पता है, E तो कांस्टेंट है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, so we can calculate the number of electrons present in a given amount of charge। एक गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स है वो हम मालूम कर सकते हैं इस रिलेशन के द्वारा। ठीक है बच्चों, इतना तो समझे। मुश्किल है सर समझना, लेकिन समझ सकते हैं। चलिए, अभी एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स है ये कैलकुलेट कर लेते हैं। ये अच्छे से ध्यान में रखना है बच्चों। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखता है, या हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। रिलेशंस अभी जो जो पढ़ा जरा उसको ध्यान में रखना है। अभी रिलेशन पढ़ा हमने I इक्वल्स टू Q अपॉन T, पढ़ा Q इज इक्वल टू Ne। ठीक है, दोनों रिलेशंस को ध्यान में रखना है ना। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, द क्वेश्चन इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स constitute 1 coulomb of charge। कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल करके एक कूलम चार्ज को कंस्टिट्यूट करते हैं, यानी एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों हमारे पास चार्ज कितना है, Q इक्वल्स टू 1 कूलम। E का वैल्यू कितना है, चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझ गए, तो यहां तक तो आप समझे कि चार्ज कितना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 1 कूलम, और ये तो कांस्टेंट वैल्यू है बच्चों। E पर कितना चार्ज, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हमारे पास फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सिंस Q इक्वल्स टू Ne implies number of electrons is equal to charge upon amount of charge upon charge on an electron। इन दोनों वैल्यू को पुट करते हैं इस रिलेशन में। ठीक है, n क्या है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज कितना है 1, E कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, पुट दिस वैल्यू। सो 1 कूलम अपॉन 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, cancelling coulomb we get only numerical value, that is 1 upon 1.6 into 10⁻⁻19। यहाँ 10⁻⁻19 रेसिप्रोकल है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, सो इट इज 1 into 10⁻19 अपॉन 1.6। पॉइंट हटा, यहाँ 10 हो गया, एक जीरो यहाँ से कैरी कर लेंगे, सो इट इज 100 into 10⁻18 अपॉन, एक जीरो यहां से लिया। ठीक है, ध्यान में रखिए कैलकुलेशन। नीचे हो गया 16, इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, 4 4 जो 16, 25 को 4 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम ऐसे ही साइंटिफिक नोटेशन अगर ऐसे लिखें तो 625 into 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। एनसीईआरटी में सिंपली 6 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स लिखेगा। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन ध्यान से देखिए, इसको एक बार खुद भी कर लीजिएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, अभी हमने देखा I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, एंड Q इज इक्वल टू Ne, इस वैल्यू को भी हम वहां पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, जरा ध्यान रखिए। सिंस I इक्वल्स टू Q अपॉन T। ठीक है, बट Q is equal to Ne, putting this value in the place of Q, we get
I equals to Ne upon T, right? So the number of electrons, when the amount of current is known, we can calculate number of electron is equal to I, current into time IT upon E. तो इस तरह से एक रिलेशन को हम दूसरे रिलेशन के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई होप बच्चों ये क्लियर होगा, कुछ तो होगा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो जरूर क्लियर होगा। चलिए, इसके बाद आता है हमारा जो टर्म है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो अभी बात कर रहे थे हम लोग कि चार्जेस फ्लोज फ्रॉम हाई इलेक्ट्रिक प्रेशर टू लो इलेक्ट्रिक प्रेशर या हाई चार्ज डेंसिटी टू लो चार्ज डेंसिटी, उसको हम लोग पोटेंशियल के टर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो उससे पहले जरा बच्चों जरा ध्यान दीजिए, 9th क्लास में पढ़े पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, इसे एक बार जरूर कर लीजिएगा। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़े 9th में। ठीक है, द एनर्जी possessed by an object by the virtue of its position and configuration, that is called potential energy. अब यहां पे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करें एज पर एनसीईआरटी, थोड़ा सा समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों, उसे जरा हम समझेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन किसकी वजह से भाई, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। ये कैसे होगा सर, तो ये है एक स्फीयर, सपोज ये एक स्फीयर है। अब ये जो स्फीयर है वो मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज है, करंट इज रिगार्डेड एज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, कन्वेंशनली देखा हमने। ये एक पॉजिटिव स्फीयर है, राइट, एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज हियर। तो ये तो बड़ा मुश्किल है, प्लस प्लस जानते हैं रिपेल करता है। तो बच्चों इस पॉजिटिव स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज रखना है, कैसे रखेंगे। ठीक है, तो इस पॉजिटिव स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो रिपल्सन फील करेंगे, isn't it, right? So if we are trying to put a similar charge over each other, then the charges will felt a force of repulsion. So we can keep this positive charge on a positive sphere, right? But we have to do work against the repulsion. रख तो सकते हैं, लेकिन against the repulsion हमें काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जब कंप्रेस करते हैं तो रिपल्सिव फोर्स काम करता है, लगता है पीछे ढकेल देगा, पीछे की ओर धक्का देगा, बट हम उस पर काम कर सकते हैं, उसको कंप्रेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, वी वर्क अगेंस्ट द रिपल्सन, isn't it? So similarly, when we need to put this positive charge on the positive sphere, जब हमें इस पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव स्फीयर पर रखना है, then we need to work against the repulsion, right? And when we do the work, that work is transferred into this charge and get stored here as electric potential energy. वही जो हमने वर्क किया वह वर्क ट्रांसफर हुआ इसमें, और वही यहाँ पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इस चार्ज में, ठीक है, वर्क करने का क्षमता आ जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको यहाँ रखने के लिए काम किया गया, इसके ऊपर वर्क किया गया, राइट। सो टू कीप positive charge on a positive sphere, we need to do work against the repulsion. The work done against the repulsion
get stored as potential energy. Known as electric potential energy. तो इससे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, isn't it? So एक बार फिर से जरा समझिए, थोड़ा समझने वाली बात है। पढ़ा हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, जैसे जैसे रेस करते हैं हाइट, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता चला जाता है। इट मीन्स वी आर वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। सिमिलरली टू कीप दिस पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस है, ये भी प्लस है, नजदीक लाएंगे तो रिपल्सन फील करेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको यहां रखना है, रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? बाय वर्किंग अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्सेस। सो वी आर कीपिंग दिस पॉजिटिव चार्ज ऑन द पॉजिटिव स्फीयर बाय वर्किंग अगेंस्ट द रिपल्सन. So the amount of work done on this charge to put it on the positive sphere is transferred into it. इसके अंदर transfer हो गया and get stored in it in the form of potential energy. This is known as electric potential energy or simply electric potential. ठीक है? और electric potential दोनों ही चीजें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सिंपली डिफाइन करते हैं हम, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यों? बिकॉज बच्चों करंट इज ऑलवेज रिगार्डेड एज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, रिगार्ड करते हैं इसको कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है भाई। सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, कहां से आ रहा है पता नहीं, बट कहां आ रहा है पता है, टू अ नोन पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये समझने के लिए था 10th स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। डेफिनेशन की जब हम बात करेंगे तो सिंपल डेफिनेशन है इसका, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों। आई होप कि आपने समझा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, कैसे एनर्जी आ रहा है, कहां से आ रहा है, वर्क डन कर रहे हैं तभी आ रहा है, बिना वर्क डन किए एनर्जी नहीं आता है, इसलिए काम कीजिएगा तो एनर्जी मिलेगा। इसको सिंपली डिफाइन करेंगे हम लोग दोबारा से अदर वर्ड्स में। ये तो समझे कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल का मतलब क्या है इसमें, तो इसमें भी पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल एनर्जी से ही है, राइट। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अदर वर्ड्स में डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन by bringing a unit positive charge from infinity to a known point is called electric potential। तो यहां भी कह रहा है कि भाई ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है, ठीक है, क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। और वो जो अभी पहले हमने समझा वो बता रहा है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, अगेंस्ट द रिपल्सन हो रहा है। सो सिंपली इसको डिफाइन करते हैं। ये जो डेफिनेशन है पूरी तरह से क्लियर नहीं करता है, इसलिए हमें वो समझना पड़ा कि भाई कैसे वर्क डन हो रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, राइट। सिंस द वर्क डन इज बाय द चार्ज, वर्क डन किसके द्वारा हो रहा है, चार्ज के द्वारा हो रहा है। कहां से ला रहे हैं पता नहीं, हमारे घर में कहां से आ रहा है मालूम नहीं, हिमालय से पानी चल रहा है, ठीक है, गंगा नदी पे बांध बना हुआ है, चार्ज कहां से आ रहा है, ठीक है, और वो पानी बादलों से आया है, बर्फ के रूप में जमा है, पिघला है, फिर चला है, स्टोर हुआ है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। तो वो चार्ज कहां से आ रहा है पता नहीं, लेकिन कहां आ रहा है, घर तक आ रहा है, ठीक है, नोन पॉइंट है। सो
द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ नोन पॉइंट। आ कहाँ रहा है ये पता है, कहाँ से आ रहा है ये पता नहीं है, उससे जितना वर्क डन हुआ उस पॉइंट तक लाने में, उस वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकली सिंस electric potential is the work done by charge, so electric potential is equal to work done by charge। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सिंबॉलिकली हम V से लिखते हैं, W by Q, V इक्वल्स टू W by Q। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे बच्चों तो वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा वर्क डन इज इक्वल टू वी क्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे इसके ऐसा यूनिट का। रिलेशन डेफिनेशन में छुपा रहता, वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज, सो V इज इक्वल टू W बाय Q। ऐसा यूनिट सिंस V इज इक्वल टू W बाई Q, वर्क का बच्चों होता है जूल और चार्ज का होता है कूलम, सो इट इज जूल पर कूलम। इसे भी वोल्ट, ठीक है, को ऑनर करने के लिए इसका नाम दे दिया गया वोल्ट। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड वोल्ट डिनोटेड बाय V। ठीक है, अब यहां पे फिर जैसे 1 एम्पियर डिफाइन किया, यहां भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्या डिफाइन करेंगे, 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कैसे डिफाइन करेंगे, जब चार्ज के 1 कूलम चार्ज के द्वारा 1 जूल वर्क होगा तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। सिंपली जैसे हमने 1 एम्पियर को डिफाइन किया है, ये कब होगा, क्वेश्चन लिख रहे हैं बच्चों, इसे आप स्वयं डिफाइन करेंगे। डिफाइन 1 वोल्ट, न्यूमेरिकली इसको हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल बाय 1 कूलम। इसको लैंग्वेज में लिखना है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय 1 कूलम द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड 1 वोल्ट। क्लियर है बच्चों, सिंपल है रिलेशन के ऊपर इसको डिफाइन करना, 1 एम्पियर 1 वोल्ट 1 ओम, इजंट इट, 1 वॉट, ये सारा कुछ रिलेशन पर ही डिफाइन करते हैं। आई होप कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर होगा, आपको समझा होगा आपने। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद आता है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस, तो चलिए उसे भी समझ लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, नाम में पोटेंशियल और उसके बाद है डिफरेंस, तो भाई पोटेंशियल्स का डिफरेंस, अंतर, अब ये कैसा अंतर है, ठीक है, चलिए इसको जरा समझ लेते हैं। एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है, एमीटर है, स्विच है, सेल है और कंडक्टिंग वायर है, पॉजिटिव निगेटिव, करंट फ्लो कर रहा है। मान लेते हैं, ठीक है, कि करंट आई फ्लो कर रहा है इसमें, यहां एक पॉइंट है ए और यहां एक पॉइंट है बी, 2 पॉइंट है इन ए क्लोज सर्किट। ठीक है, बोथ पॉइंट्स आर नो, दोनों ही पॉइंट्स हमें पता है कि कहां है। सो अगर हम यहां से प्लस क्यू चार्ज 1 यूनिट चार्ज फ्लो करा रहे हैं कहां, बी की तरफ, ठीक है, तो अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में देखा कि इंफिनिटी से चार्ज आ रहा है। कहां से चार्ज आ रहा है, इंफिनिटी, पता नहीं कहां से आ रहा है, ठीक है, कहीं से आ रहा है, लेकिन किस जगह आ रहा है ये पता था। यहां पे हमें कहां से आ रहा है और कहां तक आ रहा है ये दोनों हमें पता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जितना वर्क डन कराते हैं, जितना वर्क डन होता है उस चार्ज के द्वारा,
उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ना इसको न्यूमेरिकली हम लोग देखेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन by moving a unit positive charge from one point to another point in an electric circuit is called potential difference। इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे बच्चों, ठीक है। पॉइंट ए से द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन हो रहा है, इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं, यहां लेट कर लेते हैं, कंसीडर करते हैं लेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पी डॉट पी। चलिए अब पोटेंशियल सिर्फ मान लेते हैं, लेट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at A, it means point A, B, VA and electric potential at point B, VB, right? Therefore potential difference, अभी हम मान रहे हैं, ठीक है, ये हाई पोटेंशियल पे ए है और लो पोटेंशियल पे बी है, ठीक है। हम लोग मालूम कर रहे हैं वी ए बी, यानी चार्ज किधर से किधर मूव कर रहा है, ए से बी की तरफ। देयरफॉर वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। दोनों के पोटेंशियल के वैल्यू को अगर हम सबट्रैक्ट कर देंगे, डिफरेंस मालूम करेंगे, दोनों जगह के यदि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम है तो उनका जो डिफरेंस होगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस का भी सिमिलर ऐसा यूनिट होगा वोल्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वर्क डन बाय चार्ज। W बाई क्यू से इसको भी डिनोट करेंगे, तो सिमिलर ऐसा यूनिट होगा इसका। द ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। इसका भी वोल्ट ही होगा, ठीक है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इस प्रकार से, वी ए बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाई चार्ज, यानी ए से बी तक जाने में जितना वर्क डन हुआ, ठीक है, अपॉन चार्ज, जितना चार्ज हम मूव कराएं ए से बी तक। तो ठीक ऐसा ही इसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिकैप कर लीजिए। The potential difference is defined as the amount of work done by moving a unit positive charge from one point to another point, from point A to point B in an electric circuit is called potential difference. If we are considering the potential at point A at high and the potential at point B at low, then the charge is moving from A to B. We are considering the electric potential at point A is VA and electric potential at point B is VB. Therefore, the potential difference between A and B, VAB, is equal to the difference of potential at A minus potential at B. यहाँ पे हम कंसीडर क्या कर रहे हैं, that VA is greater than VB. Electric potential at A is greater than electric potential at B. अगर यही रिवर्स कर जाए प्रोसेस, B पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई हो जाए और A पे लो, तो चार्ज मूव करेगा B से A की तरफ, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि यहां तक आपका क्लियर होगा। अब यहाँ पे दो इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम देखेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट जिससे हम करंट नापते हैं, दूसरा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं।
ये सब छोटे छोटे टर्म्स हैं बच्चों, जिसे समझना है और ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल वैल्यूज की यदि बात करें तो इनके डेफिनेशंस में इनका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन छुपा हुआ है, बस इन डेफिनेशंस को एज इट इज समझिए तो रिलेशंस खुद ब खुद याद रहेंगे। अब कितने रिलेशन देख लिए हमने, तो सर 3 रिलेशन देख लिए, कौन कौन सा देख लेते हैं उसको एक बार वापस। अभी हमने रिलेशन देखा I इक्वल्स टू Q अपॉन T, Q इज इक्वल टू NE, और अभी हमने देखा V इज इक्वल टू W बाई Q, वर्क डन बाई चार्ज। तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, अभी ये 3 रिलेशन हमने देखा, ठीक है। अब बच्चों 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक को बोलते हैं एमीटर एंड द अनदर वन इज वोल्टमीटर। एमीटर it is a device which is used to measure electric current in a circuit. एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना करंट है उसको मेजर करने के लिए हम इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, इसे एमीटर कहते हैं। अब एमीटर कनेक्टेड कैसे होता है, इट इज ऑलवेज connected in series to the circuit so that maximum current flows through it to get correct reading of current. इसे हम हमेशा सीरीज में ऐड करते हैं। यहाँ पे एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट देख रहे हैं बच्चों, ये सीरीज में कंबाइंड है। यहाँ स्विच है, यहाँ एक सेल लगा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों एमीटर को हमेशा हम कैसे जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे। सीरीज में क्यों जोड़ेंगे, ताकि जो मैक्सिमम करंट है इसके थ्रू होकर के जाए, ठीक है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो सारा करंट इससे होकर के जाएगा तो करेक्ट रीडिंग बताएगा इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट से, राइट। दूसरा डिवाइस हमारे पास वोल्ट मीटर। जैसा नाम बता रहा है वोल्ट नापेंगे, वोल्ट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज अ डिवाइस which is used to measure potential difference across the end of a conductor। यहाँ A है, यहाँ B है, तो इसमें यहाँ वोल्ट मीटर लगा दिया। सो ए बी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये बताएगा। इसको हमेशा हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इट इज ऑलवेज connected in parallel to the circuit so that minimum current
flows through it. कम से कम करंट इसमें से पास करे, इसलिए इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका काम नहीं करंट मेजर करना, इसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस बताना, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों डिवाइस ध्यान में रखिएगा, वोल्ट मीटर और एमीटर। कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट में, एमीटर हमेशा सीरीज में और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करता है, ठीक है बच्चों, समझ गए। चलिए, तो यहां तक हमारा टर्म खत्म हुआ पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। न्यूमेरिकल्स पोटेंशियल डिफरेंस पे भी होते हैं, करेंगे इसको हम लोग एज पर सीबीएसई फॉर क्लास 10th। इसके बाद हम लोग बच्चों समझेंगे ओम्स लॉ, राइट।